Okay, so class, in the previous video, we could just complete electric current and current density. Now you must be aware about what is the nature of current density. Current density is a vector. It's not a scalar quantity. Okay, and the direction is along the direction of the area vector. Area vector जिस तरफ है उसी तरफ current density होगी. So you can get numericals based on that. Be ready. And then J is further denoted by sigma E. So denoted by, or I would say, I just calculated it in front of you how it's equal to this. It's the microscopic form of Ohm's law. So here current density is directly proportional to electric field. It is along the direction of electric field also. Now next concept is drift velocity. Now what is drift velocity? Drift velocity is, as we were discussing, that whenever we place a wire along with a resistor in with a battery, what happens? This battery is establishes an electric field across the wire. Now in this electric field, the electrons start moving. They are moving from positive terminal to negative terminal. Now when one electron moves, it makes the other electron get repelled and the free electrons keep moving. Now inside the conductor, everything is quite smooth because they have a lot of free electrons. So when one moves, the others are also moving. So as a result, electrons move very fast and there would be collisions. However, still it's quite smooth because the number of electrons are quite large in a conductor. As a result, we never feel any kind of resistance or obstacle for electrons inside a wire. But when this electron starts moving across a resistor, now this is a resistor. Resistor क्या है? एक पर्टिकुलर मटेरियल जिसमें इलेक्ट्रॉन जब ट्रैवल करेगा तो वो बहुत बार कोलाइड करेगा. किन से? पॉजिटिवली चार्ज आयंस से जो रास्ते में उसे मिलेंगे, एटम्स से. इलेक्ट्रॉन्स डोंट हैव देयर आई साइट और समथिंग, वो सिर्फ स्ट्रेट लाइन में चलते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग चलना चाहते हैं. बट द मोमेंट दे कोलाइड, since they are very small in size and they collide with a very big size atom or positive ion, their momentum becomes zero. They lose all their kinetic energy and they at times they rebound. Now after rebounding, in a while they again start gaining the velocity in the forward direction, the direction in which the electric field is established, and again they continue to move till the time they don't collide with another thing. जब तक वो दूसरे एटम से कोलाइड नहीं कर रहे, उस बीच वो मूव करते हैं. और ये जो मूव करने वाला टाइम है, इसे हम क्या कहते हैं? रिलैक्सेशन टाइम, टाउ. सो दैट्स माय रिलैक्सेशन टाइम. एंड रिलैक्सेशन टाइम के दौरान ही इलेक्ट्रॉन स्पीड अप करता है, अपनी वेलोसिटी को जीरो से एक पर्टिकुलर वैल्यू तक ले जाता है एंड देन फिर से वो कोलाइड करके अपनी फाइनल वेलोसिटी को जीरो बनाता है. एंड दिस कीप्स ऑन हैपनिंग as the electron keep on colliding with the atoms. This collisions are what make the atoms or positively charged ions start oscillating a little. ये जो ions हैं oscillate करने लगते हैं. इनकी oscillation को हम feel कर पाते हैं. When we touch that resistor, we find that it is hot. So this is happening, that the kinetic energy of the electrons is converting into heat energy of the of the stationary ions or stationary atoms. So this is how we get this is how the atoms which are in the path of these free electrons causing resistance. So this is the resistance. Now how it is related with the resistivity and other things we'll be studying further. Now what is the drift velocity? Drift velocity is I upon NEA. आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि current is NEA VD. D is the drift velocity. VD is the drift velocity. This formula you can derive by using all this thing that the final velocity of electron will be initial zero मानेंगे हम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ने रेस्ट से शुरू किया, एंड देन एक्सेलरेशन और एक टाउ. v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी मैं यूज़ कर रही हूँ. एक्सेलरेशन की जगह पे मैं क्या यूज़ करूँगी कि इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लग रहा है वो है ई ई. क्यू ई इज़ द फोर्स, राइट? सो ई ई इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. सो एक्सेलरेशन इज ई ई बाय m. Now at the place of v I can write, at the place of a I can write e upon m tau. Now this electric field you can further put in the form of
v अपॉन एल मीन्स v, इसकी जगह मैं v बाय एल लिखूँगी, यहाँ m लिखूँगी, टाउ लिखूँगी एंड देन v की जगह पे मैं आई आर लिख सकती हूँ। एंड ये v कौन सा है, ये वोल्टेज है, और ये v क्या है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। So you can get the expressions by deriving things and you can always relate one thing with another by the derivations. So आपको ये खुद करना है और इसको करके इस फॉर्म में पहुंचाना है। n is the number of electrons per unit volume, number density of electrons. So area into length जब आप multiply करेंगे तो you'll get that. So that's how we get this expression. Please keep that in mind that the current flowing through a wire is directly proportional to number density of the material, यानी उस मटेरियल की number density of free electron कितनी है, जो चार्ज मूव कर रहा है वो कितना है। तो यहाँ पे E लिखा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, अगर और कोई चार्ज होगा तो वैल्यू अलग आएगी। देन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर पे तो वो डिपेंड करता ही है, जितना बड़ा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे। एंड द थर्ड लास्ट फैक्टर इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कितना फास्ट हमारा इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। सो दिस इज द एक्सप्रेशन। आई अपॉन एन ई ए को इन्होंने फर्दर मैनिपुलेट करके जे किया है, आई अपॉन ए बिकम्स जे, दैट इज करंट डेंसिटी। सिंस दिस इज हाउ यू ऑल हैव टू कीप चेंजिंग द डेटा एज पर द रिक्वायरमेंट। आप डेरिवेशन में फॉर्मूलाज वगैरह पुट करिए और आप यू गेट द रिजल्ट। द नेक्स्ट इज म्यू इज इक्वल टू वी डी अपॉन ई, सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज दिस म्यू? म्यू इज द मोबिलिटी, yeah, mobility of the electron, yeah, mobility of the charged particle. So what is it? Drift velocity per unit electric field. Drift velocity per unit electric field. Drift velocity की जगह पे अभी अभी आपने एक्सप्रेशन डिराइव किया था E by m tau, एंड नीचे भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो you can get this E tau by m, right? So cramming won't help you, but the ability to derive things will help. डिराइव कीजिए, एक को दूसरे से हमेशा रिलेट कर पाएंगे। इसमें एक्सप्रेशंस हमेशा ऐसे ही आते हैं, डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट डेंसिटी, और इन टर्म्स ऑफ अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके लिए हमें एक को दूसरे में पुट करना एंड रिजल्ट्स निकालना ज़रूरी है। देन दिस टाउ इज एवरेज कोलिजन टाइम दे हैव रिटन, दैट इज हाउ मच टाइम इज देयर बिटवीन टू कोलिजन्स, और यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज रिलैक्सेशन टाइम। Yeah, now next is this thing. So mobility के बारे में आप स्टडी कर चुके हैं। then this very important law, Ohm's law, which works for conductors, ohmic devices, right, which follow Ohm's law, conductors as well as what we say the resistors also it works, and the V is directly proportional to R। ये आपने 10th में पढ़ा है कि जैसे जैसे आप वायर के क्रॉस वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे वैसे वायर के क्रॉस पास होने वाला करंट बढ़ेगा, पर ये हमेशा कंटिन्यूड नहीं होगा। ये प्रोपोर्शनैलिटी एक पर्टिकुलर अमाउंट तक रहेगी जब तक वायर इतनी हीटअप नहीं हो जाती कि उसकी रेजिस्टेंस बदल जाए, तो ये स्लोप चेंज होना शुरू हो जाएगा। सो दिस डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी, जो स्ट्रेट लाइन आ रही है, ये मेरा ओम्स लॉ है। ये दिखाता है कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा वैसे वैसे करंट बढ़ेगा। सो V इज इक्वल टू आई आर, फर्स्ट लॉ, एंड देन इसका माइक्रोस्कोपिक फॉर्म J इज इक्वल टू सिग्मा E, यानी करंट डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। आप जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा अप्लाई करेंगे उतनी ज़्यादा करंट डेंसिटी जनरेट होगी। इंडिपेंडेंट फैक्टर यहाँ वोल्टेज है, क्यों? क्योंकि आपको पहले वोल्टेज को वैरी करना पड़ेगा, तब जाके आपका करंट चेंज होगा। देन ओम्स लॉ से ही फर्दर हम इसमें जो R निकालते हैं, R इज़ माई प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट, रेजिस्टेंस होती है, और R इज इक्वल टू V अपॉन E। अब इसमें आप ये नहीं कहेंगे कि रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन वोल्टेज या रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। नो, रेजिस्टेंस इज ओनली डिपेंडेंट ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल, रो L बाय A। जो आपने मटेरियल यूज़ किया, जो रेजिस्टर आप यूज़ कर रहे हैं उसकी लेंथ क्या है, और जो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो क्या है, ये फैक्टर्स डिसाइड करेंगे कि वो मेरा रेजिस्टर जो है वो कितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रेजिस्ट करता है। बट V और I नहीं डिसाइड करेंगे। R इज़ अ रेशियो ऑफ V एंड I, मतलब वोल्टेज अगर बढ़ रहा है तो करंट बढ़ेगा। इनके रेशियो को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। देन नेक्स्ट इज रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी आप जानते हैं, रेजिस्टिविटी क्या है? रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस आर रिलेटेड इन दिस वे दैट बोथ ऑफ देम इंडिकेट दैट हाउ मच इज द ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइडेड टू इलेक्ट्रॉन्स वाइल फ्लोइंग थ्रू द वायर। बट अब ये रो क्या है? रो इज इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी।
सो रो इज़ बेसिकली द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल. आर हमारी एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी है बट रो हमारी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है. यानी आर डिपेंड करती है कि कितनी लेंथ है वायर की, कितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, बट रो डिपेंड करती है कि वो मटेरियल कौन सा है जिसकी हम बात कर रहे हैं. इसलिए रो इज इक्वल टू 1/सिग्मा ओम मीटर. नाउ नेक्स्ट इज द कंडक्टिविटी. कंडक्टिविटी is sigma is equal to J upon E. So again, you know J is equal to sigma E. So sigma आप निकाल सकते हैं J upon E करके. अब इसी से ही आप रो भी निकाल सकते हैं कि रो विल बी E upon J, इसका इन्वर्स. तो ये सब चीज़ें आपको तभी आएंगी जब आपको इनके बारे में थोड़ी सी आइडेंटिफिकेशन है. और डायरेक्ट क्वेश्चन तो CBSE कभी भी नहीं पूछते हैं. तो दैट्स हाउ रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी आर डिपेंडेंट एंड आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. Next is the grouping of resistors. How can we connect the resistors? So R is equal to R1 plus R2 plus R3 plus dot 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 Rn. Means सीरीज़ में अगर आप resistors को कनेक्ट करते हैं along. सीरीज़ का मतलब क्या है कि जब resistors को ऐसे कनेक्ट किया गया है कि वो दो resistors एक दूसरे से सिंगल पॉइंट पर कनेक्ट हो रहे हैं और उस पॉइंट पर कोई तीसरा कनेक्शन नहीं होना चाहिए, तो ऐसे दो resistors को हम सीरीज़ में कहते हैं. Yani when two resistors are connected to each other in such a way that they are connected with each other at one single point with no any third connection at that point. In that case, this R1 and R2 would be considered in series. Similarly, R2 and R3 would be also in series. And when they are in series, you can get the complete resistance by algebraically adding them. Now, when it comes to parallel combination of resistors, it means that when two resistors are connected to each other in such a way that they are connected to each other at 2 points, and there can be third connection at that point, but yeah, the two resistors are connected to each other at the 2 points and we call them in parallel. So you can get that in that case the reciprocals are added to get the reciprocal of the final resistance. So this is the expression. Yeah, next is the next topic that is very crucial in this chapter is temperature dependence on resistance. How resistance is dependent on temperature. So this is a relation. R is equal to R naught 1 plus alpha T minus T naught. Now what is this T naught? T naught is your reference temperature. जिस reference temperature पे आपको values दी गई होंगी उसको consider करके आप ये expression put up करेंगे. T is that new temperature at which you have to find the resistance. Then R naught is the resistance at that reference temperature. Alpha is the coefficient of resistivity, or you can call it as temperature coefficient of resistance. Means alpha is your delta R upon delta T. Temperature बदलने के साथ साथ resistance कैसे बदल रही है, that is your alpha. And similarly they have applied it for resistivity also, the same relation. So your alpha will become delta rho upon delta T, change in temperature. So this on this question on this formula, based on this formula we get very simple 3-mark questions which are given in your NCERT also, and you can also go through the PYQs of CBSE to get some idea about what type of questions would come, but majorly very easy questions come in this category, and by putting up the formula also you easily score 1 mark in such questions. Next category is our this electric cell. Let's come to electric cell, or it's better let's focus on Wheatstone bridge. Wheatstone bridge is an arrangement of resistors. We arrange the resistors in such a way that for 2 points the voltage comes out to be same. For example, A and B are 2 points, and I have made my values, I've generated, or I would say I've conditioned R1, R2, R3 and R4 in such a way that the voltage, the electric potential at A and B comes out to be same. So if A and B have the same electric potential, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा. तो मैं अगर सर्किट को कनेक्ट भी कर देती हूँ बैटरी से और क्लोज कर देती हूँ तो भी A और B के बीच में कोई करंट नहीं जाना है. ये दोनों कॉमन पॉइंट हो गए. तो अब अगर ये दोनों कॉमन पॉइंट हो चुके हैं जिनमें से कोई करंट पास नहीं कर सकता क्रॉस, तो उस केस में हमारी कंडीशन क्या है कि R1 अपॉन R3 हैज़ टू बी इक्वल टू R2 अपॉन R4.
एंड इस तरीके से आप व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन यूज़ करके कभी भी अननोन रेजिस्टर की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसमें अक्सर ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि अगर ये दोनों एक ही पॉइंट है तो रेजिस्टेंस क्या होगी, फाइनल रेजिस्टेंस क्या होगी। तो उस केस में फाइनल रेजिस्टेंस ये बनेगी। अगर ये पॉइंट कॉमन है तो आप ये देख सकते हैं R1 R3 दोनों पैरेलल में हैं, R2 R4 भी पैरेलल में है, R1 R3 ये दोनों पैरेलल में हैं और R2 R4 भी पैरेलल में हैं और ये दोनों के दोनों आपस में क्या है, सीरीज़ में। यानी पहले आपको इस लूप की रेजिस्टेंस निकालनी है, फिर इसकी, और दोनों को फिर एड अप करना है। दिस वे यू कैन गेट द रेजिस्टेंस फॉर द व्हीटस्टोन ब्रिज। देन मीटर ब्रिज आपका एनसीईआरटी का नहीं, प्रैक्टिकल लैब का एक्सपेरिमेंट है, जिसमें आप क्या करते हैं, एक वायर के क्रॉस वोल्टेज को डिवाइड करते हैं। यस तो आपने वायर के क्रॉस पूरा वोल्टेज को डिवाइड कर दिया। एक लेंथ आपके पास होती है 1 मीटर की। अब आप इसी वायर पे पहले ऊपर की तरफ एक लगाते हैं R1 एंड देन R2, और यहाँ पे हाँ अगर आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे आपका गैल्वेनोमीटर होता है और ये आपकी पर्टिकुलर लेंथ आती है और ये आपकी 100 - L लेंथ आती है। तो आपको पता है कि इस लेंथ पर ही क्या डिवाइड किया गया है, वोल्टेज डिवाइड किया गया है। तो इस पर्टिकुलर पार्ट की रेजिस्टेंस अलग है और इस पर्टिकुलर पार्ट की रेजिस्टेंस अलग है। बट जब आप इन दोनों पॉइंट्स के बीच का वोल्टेज सेम कर देते हैं तो आपकी अगेन कंडीशन R1/L इज इक्वल टू R2/100 - L ये आ जाती है, और आप लेंथ का यूज़ करके अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट ऑफ योर फिजिक्स लैब, सो इट्स गुड आइडिया टू कीप अ होल्ड ऑफ इट। पोटेंशियोमीटर पहले आपके कोर्स में था, अब आप नहीं करेंगे इसे, इसकी ज़रूरत नहीं है। देन लेट्स कम टू द किरचॉफ्स लॉज। किरचॉफ्स लॉज जो है, ये दोनों के दोनों लॉज आपके करंट के लूप्स को ईजीली सॉल्व करने के लिए और हर ब्रांच में से करंट की वैल्यू कितनी आएगी वो निकालने के काम आते हैं। वन इज़ जंक्शन लॉ, इसको वोल्टेज KVL भी कहते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। सॉरी नो इट्स KCL। जंक्शन लॉ, जंक्शन मतलब जहाँ पे वायर्स जुड़ें वहाँ पर क्या होगा। तो ये एक लॉ क्या कहता है कि जो भी मतलब जंक्शन पे जो भी करंट आ रहा है और जंक्शन से जो भी करंट जा रहा है उसका जो नेट है इट हैज़ टू कम आउट टू बी ज़ीरो। जंक्शन पे कभी भी चार्ज स्टोर नहीं हो सकता। यानी कि अगर आप इस लूप इस पूरे जंक्शन को देखिए, P पॉइंट को देखिए, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे I1 से भी करंट आ रहा है, I2 करंट आ रहा है और I4 करंट आ रहा है। तो द थिंग इज़ I1 + I2 + I4 इज इक्वल टू I3 + I5। सो यू कैन सी कि ये तीनों जो आ रहे हैं इनका नेट रिजल्टेंट क्या आ रहा है, सम ऑफ द टू। So the algebraic sum of all the currents directed towards a point is 0. This is how it is. Yep, this is your junction law. Then there is loop law also, जिसे कहते हैं हम KVL, Kirchhoff's voltage law. अब इसमें क्या है, आपको पूरे एक लूप पे वोल्टेज देखना है। आपको कई बार मतलब एक बैटरी दी है, उसके पास एक पूरा लूप्स बने हुए हैं तरह तरह के। ये तो बहुत सिंपल सर्किट है जो 10th के बच्चे भी कर लेते हैं, बट इस केस में अब आपके पास जो प्रॉपर आते हैं वो ये वाले आते हैं। मतलब एक अगर ये NCERT का न्यूमेरिकल है, वो उन्होंने एक क्यूबॉइडल शेप का सर्किट बनाया हुआ है। मतलब वायर्स को इस तरीके से अरेंज किया है कि एक क्यूबॉइड बन रहा है। अब इस केस में आपको ये पूरा लॉ यूज़ करना होता है। आप ये देखिए, अब यहाँ से आप यूँ करके बैटरी लगा देंगे। अब इसमें ये निकालना कि हर वायर में हर ब्रांच में कितना करंट जाएगा, इट्स अ टास्क। बट सबसे बेस्ट पार्ट ये होता है कि वो इसमें हमें सब में रेजिस्टेंस कॉमन दे देते हैं, और जब रेजिस्टेंस वो सेम दे दें या डबल या ट्रिपल भी दे दें तो भी आपके लिए ये इजी है। आपको क्या करना है, आप यहाँ से I करंट फ्लो करवाएंगे और इस पॉइंट पे आप देखेंगे कि पहली वाली ब्रांच से I1 करंट जाएगा, दूसरी से I2 जाएगा, तीसरी से I3 जाएगा। पर अगर ये तीनों ब्रांचेस में सेम रेजिस्टेंस है तो तीनों में करंट बराबर डिवाइड हो जाएगा। तो यू कैन मेक I1 = I/3। ऐसे करके आप तीनों में I/3 भेज सकते हैं। देन फर्दर यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको पता है कि दोनों रास्तों पे सेम रेजिस्टेंस है, यहाँ से I/3 आया है, तो अब ये खुद को डिवाइड करके I/6 बनाएगा और यहाँ पे भी I/6 बनाएगा। देन फर्दर वो आगे जाएगा, तो अब यहाँ से आप इसको देख सकते हैं कि यहाँ से I/6 आया है, पर ये इधर से यहाँ पहुँचना है। तो अब अगर इसे यहाँ से यहाँ पहुँचना है तो अब आपको ये देखना पड़ेगा कि ऊपर वालों से कितना आया, और ऐसे करते हुए आप यहाँ का नेट जंक्शन निकालेंगे और वो आना कितना चाहिए, यहाँ से भी I आना चाहिए। फिर आप एक लूप ये बना सकते हैं। पूरा ये लूप आपको दिख रहा है, ये आपकी मर्ज़ी है कि आप कौन सा लूप बनाते हैं। ये लूप बनाते हैं आप, ये लूप बनाते हैं, पर उस लूप पे आपको निकालना है कि V1 + V2
प्लस V3 हैज़ टू बी कम आउट टू बी 0। और उस V1 को करने के लिए आप I1 R1 प्लस I2 R2 प्लस I3 R3 वगैरह करके यू विल गेट द आंसर। साइंस मैंने नहीं लगाए हैं, आप साइंस लगाएंगे और तब आपको आंसर मिलेगा। तो दिस इज़ हाउ वी डू इट। और इसमें ये ध्यान रखिए, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ अगर जाएंगे तो आपका वोल्टेज क्या होगा, एड अप होगा। नेगेटिव टर्मिनल अगर आप कभी को KCL KVL लगा रहे हैं और आपने KVL लगाते वक्त आपने देखा कि बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मेरा लूप की डायरेक्शन जा रही है, करंट जा रहा है, तो आपको वोल्टेज को क्या करना है, प्लस में लिखना है। बट अगर कभी वो नेगेटिव से पॉजिटिव से नेगेटिव गया ऐसे, तब आपको वोल्टेज माइनस में लिखना है। तो आप इन कंडीशंस को फुलफिल करेंगे, आपके लूप्स का यूज़ करके आपका आंसर हमेशा करेक्ट आएगा। जो जंक्शन लॉ है, इट इज़ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इस बात को याद रखिएगा। ये सब कुछ ऐसे हवा की बातें नहीं है, मतलब दे आर एक्चुअली फंडामेंटल लॉज। दिस वन इज़ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड दिस इज़ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। Voltage is basically work done. So work done is basically the energy. So this is how you can firstly study KCL and KVL and then do the problems. When you do the problems, only then you'll be able to handle these. Now the last topic of this chapter is your electric cell. What is electric cell? It is a device which maintains a potential difference between its two terminals. इलेक्ट्रिक सेल एक डिवाइस है जिसके टर्मिनल्स के बीच में एक फिक्स पोटेंशियल डिफरेंस होता है। जब तक इसे हम किसी सर्किट से कनेक्ट नहीं करते, इसका पोटेंशियल डिफरेंस बदलता नहीं है। तो अब इसी पोटेंशियल डिफरेंस, ये जो आपको दिया गया है, उसमें एक कॉन्सेप्ट है EMF, E। सो वेन एवर अ सेल इज नॉट कनेक्टेड टू एनी टर्मिनल, देन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स टू टर्मिनल्स इज गिवन एज E. So EMF is E, which is equal to work done per unit charge, and this is this barrier voltage between the two terminals of the cell upon the distance between them. So this is how when not connected externally. Now when you connect them externally with any resistor, यानी अगर आपने ये दो टर्मिनल्स को कनेक्ट कर दिया एक रेजिस्टर के साथ, तो अब इन दो टर्मिनल्स के बीच में जो वैल्यू आएगी दैट वुड बी योर V। और V कभी भी आपका, मतलब V आपका E के बराबर नहीं आता, क्योंकि सर्किट में से करंट फ्लो करने लगा है। तो अब आपके पास अगर दो पॉइंट्स हैं VA माइनस VB, तो आप VA माइनस VB की वैल्यू जब लिखेंगे तो इट वुड कम आउट टू बी E, दैट इज EMF माइनस IR। नाउ व्हाट इज दिस IR? IR इज द इंटरनल रेजिस्टेंस। अब अभी तो मैंने IR लिखा है, बट मुझे यहाँ पे कैपिटल माइनस I कैपिटल R भी लिखना पड़ेगा। क्यों? सर्किट में एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R भी है। ये स्मॉल r इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है, यानी सर्किट में से खुद भी करंट को नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल में जाने में कुछ रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ती है, जो इसमें बीच में केमिकल रखा है उसकी रेजिस्टेंस के बराबर है। सो दैट वी हैव टू मेंशन। सो दैट्स हाउ यू गेट इट। नाउ अगर आपने कभी सेल्स को पैरेलल में कनेक्ट किया है, यानी कि ऐसे कनेक्ट किया है आपने सेल्स को, अगर आपके सेल्स ऐसे कनेक्ट हो रहे हैं इस तरीके से, ये है पैरेलल ग्रुपिंग। तो उस केस में आपको अगर वैल्यू निकालनी है, दो के लिए दिया गया है ये फॉर्मूला, इट्स E1 R2, बट मैं इसका एक इजी जनरलाइज फॉर्मूला लिखती हूँ। 1/E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन E2 R2। ऐसे करके आपके जितने सेल्स हैं उन सबको ऐड कीजिए। और इस बात का ध्यान रखिए कि आपके जो सेल्स हैं वो प्लस प्लस साथ में कनेक्ट हो रहे हैं या प्लस माइनस। अगर प्लस वाला माइनस के साथ कनेक्ट हो रहा होगा तो उसी वाले को, उसी सेल की जो वैल्यू है वो यहाँ पे माइनस लिखिएगा बीच से। अगर प्लस माइनस के साथ कनेक्ट हो रहा है तो उसमें माइनस लिखिएगा। बाकी अगर सारे प्लस प्लस कनेक्ट हो रहे हैं तो सब प्लस होते जाएंगे। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया किस केस के लिए, जब सारे के सारे किस में कनेक्टेड हैं, पैरेलल में। और इसमें भी आपको E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट करना पड़ेगा इसको। पर आपको पता है रेजिस्टर्स तो सबकी इंटरनल रेजिस्टेंस सब पैरेलल में कनेक्टेड है, तो वो आप 1/R करके निकाल सकते हैं। देन यू हैव दिस फॉर्मूला ऑल्सो विच इज़ द करंट विच इज़ इक्वल टू E इक्विवेलेंट अपॉन R प्लस ये इंटरनल रेजिस्टेंस 2 के लिए किया गया है, तो ये ऐसा फॉर्मूला है। देन सीरीज़ ग्रुपिंग में आप क्या करेंगे? सीरीज़ ग्रुपिंग में आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने सेल्स का वोल्टेज डायरेक्टली ऐड करना है। वो भी तब जब वो प्लस प्लस साथ में कनेक्टेड है, जैसे ये प्लस माइनस के साथ, माइनस प्लस के साथ। तो इस केस में आप डायरेक्टली ऐड करेंगे। बट अगर कभी ऐसे मिल जाए माइनस और माइनस प्लस ऐसे वाला, तब आपको E1
माइनस E2 इसका ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, सो बस इस बात का ध्यान रखिए, इसमें कोई एरर नहीं होता है, सीरीज़ में आपके रेसिस्टर्स ऐड हो जाते हैं एंड मेजरली क्वेश्चंस आते हैं इस पर। दिस इज़ अ वेरी क्रूशियल चैप्टर एंड नॉट अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर। इन फॉर्मूलाज को दिमाग में रखिए, सॉल्व कीजिए एंड यू विल गेट होल्ड ऑफ दिस। एंड दैट्स हाउ वी कंप्लीट द फर्स्ट यूनिट विच इज़ ऑफ 17 marks for CBSE exam. Revise and do numericals. Thank you.